So a warm welcome to all of you. Thanks for sparing some time from your busy schedule for this webinar today. During this lockdown period, this is our first webinar to gain knowledge on insurance of warehouse from our respective speakers from Insurance Foundation of India, who are very well versed with their professional career and will share their vast knowledge on insurance with us during this session. So without taking much of your time, I would like to invite our founder member and Director of Association of Warehouse Developers, Dr. I.S. Yadav. Dr. Yadav is a retired IAS and Director of Prerna Logistics. Over to Yadav, sir. Thank you, Sapna. A warm welcome to our distinguished panelists, members, and participants. I am pleased to open this webinar. This Association of Warehousing Developers, it was founded in the year 2018 as a non-profiting organization under Section 8 of Companies Act. Our mission is to derive up standards and share best practices within the warehousing industry. The association is established to enable warehouse owners and developers from the state of Uttar Pradesh to cooperate, better represent, share best practices for bringing further benefits and added value to the warehousing industry. We look closely with our members, government ministries and departments, other warehouses owners, third-party logistic members, and other similar associations within the country and outside on behalf of our members. Before we get started, I would like to express my sincere appreciation to all of you who have spared time and have helped us to make this event come together to become a success. Today, we are having a distinguished panel comprising of Mr. S.K. Sethi, who is the founder and CEO of Insurance Foundation of India, Director, RIA Insurance Brokers Private Limited. He would be speaking on risk assessment and insurance of warehouses. Welcome, Mr. Sethi. Our other speaker is Dr. Anupam Suri, who is a consultant, trainer, former professor of Amity University and National Insurance. We also have with us Mr. Thorndup Sharing as our distinguished speaker. He is a former marine underwriter, Tata AIG General Insurance Company, has worked with AON, Mars India Insurance Brokers Private Limited. He would be speaking on insurance of warehouses under construction and insurance of warehouses in operation and claims. I extend a warm welcome to all. Thank you very much. Over to Mr. Sethi. Thank you very much for giving us this opportunity to be with you. And we are pleased that this association is doing a wonderful job of spreading the awareness of insurance, where many people lack that what it is. There are so many notions that insurance companies do not make payment of the claims and all that thing. But we as Insurance Foundation of India, we are a not-for-profit organization. We take this role of spreading the awareness of insurance, clarifying the questions which come in the mind of people so that they are having clear picture of what insurance is, what this specific insurance policy may be, and what are the things which should be kept in mind by everyone. So therefore, I take the introductory session on risk assessment. Risk assessment is something which each one of us, whether we are in our warehouse, whether we are in our office, whether we are in our factory, whether we are in our home, we should take care of. And the best thing is to have a round of the complete facility where you will see that there are violations being done by the staff members, which can result in fire hazard. As a result of that, in the event of any fire or
flooding of the sewer line, not cleaning of the drains and all that thing, the damage can be caused to the property. So as we are focusing more on warehouses today, so we are having, that what are the things which should be there, which should not be there. So my first point, which is there, is that you being very responsible, you being very successful businessman who have gone in for warehouses, and maybe that you will add more warehouses in the years to come. First thing which you should see when you are looking at the plot is that is it that the plot is next to some factory where hazardous work is being carried out, where there is a something which is flammable, which can someday cause damage, and it can come and affect the building next to it, which you are going to construct. So risk assessment is something you have to see it from the day you are thinking of the plot, whether we should buy this or that. I generally find that people are very conscious on the Vastu angle, but in Vastu angle also, now you being the responsible people, you should take care that they should not have in the surrounding nearby some maybe gas station, maybe petrol pump, maybe some hazardous chemical factory from where the leakage can take place. A leak of gas in Vizag, and it affected so many people, and we are having in our mind Union Carbide tragedy. So please take care of these things. Then it is that when you are planning for the warehouse or you are having the warehouse which is in operation, you must see that all around it that there is a cleanliness is one thing which is there is which is very important, but it is that there should not be stocking of hazardous thing, because I have come across in my career that there are companies which are having this packaging material which is stocked outside. This is to be sold to kabadi wala, and then it is that if there are gunny bags or if there are paper bags, if there are wooden cases and all that thing, do not go on collecting them, whether it is your property or some tenant is using it. Please guide him that be responsible and you should take care of it. So risk assessment is the term which is used in insurance industry, where it is that if your property is reasonable large, then risk engineer of the insurance company can come and can have a round of the whole property to point out to what points need to be corrected so that your property is safe and they ensure a safe property. So there can be examples, storage of diesel drums next to that is. So you must be remembering, that is some 10 years back, there was a hospital in Calcutta by name Emory Hospital where fire took place, and the directors, owners of the company, they were arrested because the reason was that in the hospital, in the basement, they were taking supply of surgical cotton, and next to it, they had stocked diesel oil, which is used in DG sets. So risk assessment is that aspect which is there is, and it is that I myself added that we used to have office in a building which was having 11 floors. It was by chance residential building, and we were running our office in that one. Now here what was happening was that underground water which was coming from the municipal corporation or Delhi Jal Board, it was being pumped to the higher floors. Then every floor, every kitchen, every toilet, people had installed some syntax tanks, and immediately all the water will be taken out. So I used to feel scared and I left that premises. And after a year or so, there was a fire in that building and it proved damaging to the residents, especially on the higher floors, when they had to rush out of the building under very difficult circumstances. So my suggestion to you will be that when you are planning your warehouse, you should see to it that in addition to fire sprinkler system, fire sensor, and all that thing,
you should have one tank which is exclusively for supply in the event of a fire tragedy in that building. That is the way to protect yourself. There is a tendency on the part of maybe us, maybe the tenants, that as their requirement increases, they start putting some temporary structures and all that thing, where they will put some false roofing, this thing, that thing. Now that has to be discouraged, because all these things ultimately are increasing the fire hazard and they can prove damaging. Now, drainage which is flowing outside of your property, and that is, there's a tendency of getting clogged due to polythene bags and all that thing. So see to it that you or your neighbors or your association which you might be having in that industrial area or area, that is cleaning of the drainage and all should be there, so that there cannot be any flooding or kickback of the flood, which can go into the building and which can prove damaging to your property, whether you are using or your tenant is using. I take it that both are on the same boat. Recently, there was an instance in Barakhamba Road. In one of the building in the basement, 5 cars got burnt, and you would have seen the photographs on TV as well as in the newspaper, that these cars were having a sanitizer, which is a requirement of COVID, and people have picked up the habit of keeping sanitizer in the cars. And due to high temperature in Delhi on that day, these cars were having, one car was having sanitizer which got burnt, and as a result of that 5 cars got burnt. So take care of these things. These are all what I am talking are very, very common sense things which all of you know it, but it is not put it in practice. And whenever you have opportunity of going to your property, in case it is being occupied by tenant, you have the right, you should have a round of the boundary wall, that is all around the building as well as building, to see, and if required, point it out to the tenant, take care of it. As far as the insurance aspect is concerned, it is comprising of 2 things. What we could think of is that one is insurance when you are constructing a new warehouse, what you need it. And second is when everything is constructed and it is occupied, whether by you or by tenant, then it is that how insurance of that should be done. So I will not take much time on this one. And I will like to pass on to Dr. Anupam Suri, who will cover up the concept of insurance of warehouses under construction and warehouses which are constructed and which are now occupied. So after that, we will have a session of Thondu, sir, and he will be covering up the claims part. That is, what are the common things which one should keep? As far as the specific of warehouses is concerned, naturally it becomes one-to-one thing, and that is when you are having the questions. So pass it on to Dr. Anupam Suri. Please unmute so that we can hear you. Thanks for sharing your knowledge, Thank you, Mr. Sethi. Sethi sir. Next, I would like to invite our next speaker for the day, that is Dr. Anupam Suri. Over to Suri. Yeah, thank you very much. Thank you, Unmute, Mr. unmute Sethi. yourself. Unmute. Thank- Unmute. Unmute. Yeah, I have unmuted. I mean, can you hear me? Yes, Can you hear me all? I can. Yes. Yeah. Okay. So thank you very much. So thank you, Swapna, and thank you, Mr. Sethi. As Mr. Sethi has already pointed out that whenever we are facing the risks, then we have to ourselves, number one, take care of the things. But yes, it is not possible for all of us to take full care of each and every type of a risk. And that is what the insurance is also for. We have a risk management technique wherein we transfer the risk from ourselves to the insurance company. So
with regard to warehouse, now I am going to discuss about two basic types of insurances. One is when the construction is taking place, when the warehouse building is under construction, then there are certain risks associated and can lead to the loss. And then next will be the, or rather first I will discuss the operational part, which is very, very important. When we have the warehouse in working, I mean, we are keeping the goods in the warehouse, we are having equipment being used, people being there, and all those operational aspects being there, and therefore resulting in different types of risks and possible losses. So considering that, now I am going to discuss about that. I think sharing of screen has been disabled. Can you please activate it so that I can share the screen, my presentation? Will it be possible? Thank you very much, Swapna. I hope we all can see the screen now. Yes, I can see. Okay, thank you very much. It's visible. So now talking about insurance solutions for warehouses specifically, let me take you these one by one. As Mr. Sethi has already pointed out, the warehouse companies are lot in India now, with increasing capacities, expanding their network day by day, with adoption of new concepts, because so many manufacturing activities are taking place. There is a growth in organized retail sector. We have so much of cargo traffic rising day by day, exploding e-commerce, where we have e-trading, but that requires also storage of goods in the warehouses. So there has been a big increase in warehouse sector, and therefore we have here insurance for warehousing. So basically अगर आप देखेंगे तो warehousing में there are many risks. The reason being there are increasing value of materials being stored in each location, and more important, material being of different kinds. There could be hazardous materials, there could be less hazardous materials. All different type of stuff is stored in the warehouses, and therefore there are varied types of risks associated with warehouse. Whenever we talk about possible causes of losses or damage which may take place to the warehouses, as far as risk mitigation measures are concerned, they are there, of course, as one of the most basic and important thing pointed out by Mr. Sethi is housekeeping, and there are many others also, fire extinguishers, but still again there are limitations on how many risk mitigation measures we can adopt. Even after adopting those, there are risks which are taking place, which are losses which are taking place. And as we all know, the one of the major risks is loss due to fire. In fact, you might be surprised to know that number of fires which are originating from storage facilities is as high as 23% of the total fires reported. So you can just imagine. And the reason is because a variety of goods are stored in the warehouses. Many times warehouses are left alone also, with hardly any person present there, or maybe one or two, not well equipped with dealing with such type of fire losses. So the fire incidents are very high as far as loss to warehouses is concerned. But having said that, fire is one of the major causes. Flood also is another cause, maybe in those particular areas which are coastal line, locations are near the coastal areas, or otherwise in areas like Mumbai, etc., where every second, third year we are now being reported about flood, etc. It could be flood or it can be simple inundation. So losses due to flood and inundation are also on rise as far as warehouses are concerned. Then there is sometimes a possibility of earthquake. I don't know, I mean, you would be knowing in Delhi NCR itself, I think in last 3 months, how many earthquake shocks we have come across. Even yesterday there was one. So this thing is also on increase.
unfortunately, but we have to face it. Similarly, sometimes there are situations of riot, terrorism is there, theft, burglary, all these things can take place, and warehouses are faced with all these different types of risks. And what are the consequences of these warehouse losses? There will be damage to own goods, because in warehouse there are two situations. एक तो है कि we have our own goods, मेरा अपना सामान पड़ा है, और दूसरा है कि मैंने कस्टमर का सामान रखा हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है, और कस्टमर्स गुड जो कि बेलर बेली रिलेशनशिप में आ जाता है. सो आई कैन बी लीगली लायबल इफ देयर इज डैमेज टू द गुड्स ऑफ माय कस्टमर व्हाइल इन माय कस्टडी. तो उसका रिस्क बहुत है. अगर वेयर हाउस में लॉसेस हो जाते हैं, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस स्टोर्ड गुड्स पे डिपेंडेंट है, तो मैन्युफैक्चरिंग पे इफेक्ट आएगा, आपकी प्रोडक्शन कम होगी, लॉस ऑफ मार्केट शेयर विल बी देयर, एंड देयर कुड बी डिले इन कंप्लीट प्रोजेक्ट आल्सो. अगर कोई आपने प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है और वो आपका उस मटेरियल पे डिपेंडेंट है विच इज देयर इन द वेयर हाउस, एंड देयर इज अ लॉस टू वेयर हाउस ड्यू टू फायर, फ्लड एटसेट्रा, तो वो इक्विपमेंट भी आपका डैमेज होगा. तो जो आपका प्रोजेक्ट का प्रोसेस है, दैट विल आल्सो बी इन jeopardy. So millions of dollars have been lost in warehouse losses also. In fact, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, फायर मेजर लॉस है, बट उसके साथ धीरे धीरे in some of the areas flood is also creating havoc one time or the other. जैसे आपने 2005 का मुंबई फ्लड्स अगर किसी को याद हो, अनएक्सपेक्टेडली आया था. इवन मैं भी उस समय इंश्योरेंस कंपनी में था, तो और मैंने भी मुंबई के क्लाइंट्स के काफी क्लेम्स सेटल किए थे. तो वहां पे there were losses to the tune of about 500 crore only to warehouses. बाकी लॉसेस तो भूल जाइए, फैक्टरीज एक्सेट्रा. तो आप देखिएगा, फ्लड इज आल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स. अब वेयर हाउस ओनर अगर आप हैं, तो आपका फिर क्या कंसर्न होगा कि मेरे को प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है, चाहे मेरा वहां पे स्टॉक रखा हुआ है, चाहे मशीनरी है, बिल्डिंग है. फायर, फ्लड, इनंडेशन, ऑल दिस कैन कॉज बिग लॉसेस. लायबिलिटी का रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क इज इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ इनकम, उसको भी थोड़ा सा हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे. सो लार्ज प्रॉपर्टी लॉसेस से क्या होता है कि आपका बिजनेस इंटरप्ट हो जाता है, और जब आपका बिजनेस इंटरप्ट होगा, तो जो आपकी प्रोडक्शन है वो इंटरप्ट होगी, प्रोडक्शन इंटरप्ट होगी, तो आपका लॉस ऑफ इनकम होगा. और अदरवाइज इफ यू आर अ वेयर हाउस ओनर, आपने टेनेंसी पे दिए हुए अपने वेयर हाउसेस, अगर वेयर हाउस को डैमेज होता है, तो जब तक आपकी बिल्डिंग रीबिल्ड नहीं होती, तब तक आपको रेंट का लॉस होगा. इन अदर वर्ड्स, यू आर हैविंग लॉस ऑफ इनकम और लॉस ऑफ प्रॉफिट. सो दीज आर सर्टेन रिस्क्स, और इनके लिए इंश्योरेंस सॉल्यूशंस आर अवेलेबल, अ लॉट ऑफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस वी शुड से. लेकिन आज हम जो कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उन 3 सॉल्यूशंस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो कि ज्यादा रेलिवेंस के हैं आज की डेट में. उनमें से एक है फायर एंड एलाइड पेरिल्स इंश्योरेंस के थ्रू हम टैकल करते हैं. एक हमारी पॉलिसी होती है बिजनेस इंटरप्शन पॉलिसी. इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है. बिजनेस इंटरप्शन के कारण क्योंकि इनकम या प्रॉफिट का लॉस होता है, सो वी आल्सो कॉल इट लॉस ऑफ इनकम और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी. और एक आपकी बर्गलरी की पॉलिसी है. तो इन 3 पॉलिसीज को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी. पहले सबसे इंपॉर्टेंट है फायर पॉलिसी. जैसे आप नाम से देखेंगे, फायर एंड एलाइड पेरिल्स, जनरली हमारे माइंड में फायर पॉलिसी से आता है यार कि यार मेरा फायर का रिस्क कवर है, बट सॉरी नो, यहाँ पे हम फायर एंड एलाइड पॉलिसी में कुछ और पेरिल्स या कॉजेज ऑफ लॉस को भी कवर करते हैं, इसीलिए इसको एलाइड कहते हैं. क्या क्या चीजें कवर हो जाती हैं आपकी फायर एंड एलाइड पेरिल्स पॉलिसी में? आप अपनी प्रॉपर्टी को कवर करा सकते हैं, उसमें आपकी वेयर हाउस की बिल्डिंग है, वेयर हाउस में जो आपका स्टॉक है उसको कवर करा सकते हैं. ना सिर्फ वो स्टॉक जिसके आप खुद ओनर हैं, बल्कि वो स्टॉक भी जो कस्टमर का है, जिसको हम कहते हैं गुड्स हेल्ड इन ट्रस्ट. अगर मेरे पास किसी कस्टमर के गुड्स अब मेरे वेयर हाउस में पड़े हैं, तो लीगली आई एम आल्सो रिस्पॉन्सिबल, आई नीड टू टेक फुल केयर ऑफ दैट. तो वो मेरी लीगल बेली बेलर वाली ड्यूटी आ जाती है एग्रीमेंट के थ्रू. फर्नीचर, फिक्सचर, अदर कंटेंट्स, आज की डेट में मॉडर्नाइज्ड वेयर हाउसेज हैं. मटेरियल्स को डील करने के लिए, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, हाइट्स में रखने के लिए स्पेशलाइज्ड मशीनरीज बहुत कॉस्टली होती हैं. सो ऑल दीज कैन बी कवर्ड अंडर फायर पॉलिसी.
तो इसमें बहुत सारे हमारे पेरिल्स हैं, कॉजेज ऑफ लॉस हैं जो कवर्ड होते हैं। मैं आपको जो बोलूंगा आप मेन ध्यान दीजिएगा, जैसे अदरवाइज आप सारे जितने भी हमारे पेरिल्स हैं उनको हम देख सकते हैं, बट स्टिल अगर मैं आपको बोलूं कि हमें किनमें ज्यादा लॉसेस आते हैं, उसको अगर हम 1 मिनट के लिए देखें तो एक आपका है फायर का लॉस ज्यादा होता है। नाउ आई एम टॉकिंग फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट। कुछ कंट्रीज में लाइटनिंग का भी क्या होता है, एक्सप्लोजन का होता है, इतना ज्यादा नहीं होता। आपका फ्लड और इनंडेशन, कई बार हम ये भी मानते हैं कि फ्लड कवर है, कि अगर फ्लड आया तो कवर है, बट हमारी फायर पॉलिसी में फ्लड के साथ साथ नॉर्मल इनंडेशन भी कवर होता है। अगर रेन वाटर का पानी इकट्ठा हो गया और लो लेवल पे जो चीजें हैं वो डैमेज हो गई इनंडेटेड वाटर के साथ, वो भी कवर होता है। इसके साथ स्टॉर्म भी कवर होता है, विंड स्टॉर्म एक्सेट्रा। बाकी कुछ कवरेजेस ऐसे हैं जो कि इतने ज्यादा नहीं है। एयरक्राफ्ट डैमेज, एयरक्राफ्ट डैमेज का क्या है कि अगर हमारे वेयर हाउसेस ऐसी जगह लोकेटेड हैं, कुछ कॉलोनीज आपको पता होगा, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसके वहां से एयर फ्लाइट्स बहुत ज्यादा होकर जाती हैं। यहाँ हो सकता है कि हमारे वेयर हाउसेस एयरपोर्ट के बिल्कुल पास ही हो, तो वहां पे इसका डैमेज भी इसका लॉस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऑल्दो वी एग्री कि एयरक्राफ्ट के गिरने के कारण चांसेस बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी इज लेस, बट ये आप एग्री करेंगे कि अगर एक बार भी इंसिडेंट हो जाए अनफॉर्चुनेटली, तो क्वांटम ऑफ लॉस इज ह्यूज। इट कैन बी मोर और लेस टोटल लॉस टू द वेयरहाउस बिल्डिंग एज वेल एज वेयरहाउस कंटेंट्स। तो ये कुछ ऐसे पेरिल्स हैं जो आपको एक ही पॉलिसी खरीदने से मिल जाते हैं। इसके अलावा अर्थक्वेक का रिस्क है, उसको करवाना है इंश्योरेंस। टेररिज्म है, जिनको लगता है कि अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में आपके वेयर हाउसेज हैं, आप अर्थक्वेक का थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम देके इंश्योरेंस करवा सकते हैं। आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म का भी थोड़ा सा बोलबाला है हमारे कंट्री में, विच शुडंट बी बट इट इज देयर, लेट्स फेस द फैक्ट। तो टेररिज्म के कारण भी अगर लॉस हो जाता है तो उसका भी कवर आपका पॉलिसी में लिया जाता है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, वेयर हाउसेज में एज अ वेयर हाउस ओनर, मेरा एक वेयर हाउस, 2 वेयर हाउस तो होंगे नहीं। अगर मैं अच्छा खासा वेयर हाउस ओनर हूँ तो हो सकता है कि ऑल ओवर इंडिया मेरे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे वेयर हाउसेज हैं, तो हम सिंगल पॉलिसी में मल्टीपल लोकेशन कवरेज दे सकते हैं। सो कंटेंट एज वेल एज द बिल्डिंग ऑफ वेयर हाउसेज कैन बी कवर्ड अंडर अ सिंगल पॉलिसी। अब सिंगल पॉलिसी में दे रहा हूँ, मैं वेयर हाउसेज आर प्लेंटी इन नंबर। सपोज कीजिए मेरे 100 वेयर हाउसेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। अब मेरे को इंश्योरेंस में क्या कहा जाता है कि आपने जितनी वैल्यू का इंश्योरेंस करवाना है उतनी वैल्यू डिक्लेयर कीजिए। तो उससे क्या होता है कि मेरे को हर वेयर हाउस की सेपरेट वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ती है कि एक जगह मेरा 5 करोड़ का माल है, उसका 5 करोड़ का इंश्योरेंस कर दो। दूसरे वेयर हाउस में मेरा 6 करोड़ का है, उसका इंश्योरेंस कर दो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ मटेरियल ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरा एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में आता जाता रहता हो, और ये मेरे लिए प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल है कि मेरे को 100 या 500 वेयर हाउसेस की अलग अलग वैल्यू देना। तो एक तो मेरे पास सिचुएशन ये है कि मैं हर वेयर हाउस की अलग वैल्यू, जिसको हम सम इंश्योर्ड कहते हैं, देके उसका इंश्योरेंस करा लो। लेकिन अगर मेरे पास बहुत ज्यादा वेयर हाउसेस हैं, वहां पे मेरी वैल्यू चेंज होती ही रहती है, तो मेरे पास एक और इंश्योरेंस है जिसको हम कहते हैं फ्लोटर इंश्योरेंस। फ्लोटर का वर्ड आजकल बड़ा कॉमन है, हम सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, हम कहते हैं कि हमें फैमिली फ्लोटर पॉलिसी दो, कि एक सिंगल सम इंश्योर्ड में मेरे सारे फैमिली मेंबर्स कवर हो जाएं। बस सिंपल वही चीज हमारी फायर पॉलिसी में वेयर हाउस कवरेज के लिए भी एप्लीकेबल होती है। अगर हम चाहें तो सिंगल सम इंश्योर्ड में पूरी मेरे कंट्री में जितने भी वेयर हाउसेज है सबका मैं इंश्योरेंस करवा सकता हूँ, और वो सम इंश्योर्ड सारे वेयर हाउसेज में फ्लोट करेगा। तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एडवांटेज है जो कि हमें मिल सकती है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया फायर इंश्योरेंस के बारे में। इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है, फायर इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ फायर पेरिल को कवर करना नहीं है, बल्कि फ्लड, स्टॉर्म, एक्सप्लोजन, एयरक्राफ्ट डैमेज एक्सेट्रा, उन पेरिल्स को भी हम कवर कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा है कि जो हमारा वेयर हाउस होता है, कई बार हमारे वेयर हाउसेज रिमोट लोकेशंस पे होते हैं, और अदरवाइज सिक्योरिटी अरेंजमेंट कई जगह टाइट हो सकता है, कई जगह टाइट नहीं हो सकता, तो बर्गलरी के भी चांसेस हो सकते हैं। वैल्यूएबल कंटेंट्स है,
आपने कॉपर एटसेट्रा कहीं पे स्टोर करके रखा हुआ है तो थोड़ी क्वांटिटी में भी अगर कॉपर चला गया तो उसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए हमारा बर्गलरी पॉलिसी का एक इंश्योरेंस है। इसमें जो इंश्योर्ड प्रॉपर्टी है, जो आपका कंटेंट्स हैं आपके जो वेयर हाउस में रखे हैं, उसका बर्गलरी और हाउस ब्रेकिंग के अगेंस्ट इंश्योरेंस हो जाता है। यानी कि बर्गलरी हम किसको कहते हैं, टेक्निकली हम कहते हैं थेफ्ट अकम्पनीड विद सम फोर्सिबल एंट्री और एग्जिट। कोई ताला तोड़ के या वैसे अंडर थ्रेट सामान को चोरी करके ले जाता है। सो फॉर दैट वी हैव अ पॉलिसी व्हिच इज कॉल्ड बर्गलरी पॉलिसी। इसमें प्रीमियम काफी नॉर्मल होता है, नॉमिनल होता है, कोई ज्यादा प्रीमियम भी नहीं लगता, लेकिन इससे आपका काफी फुल कवरेज मिल जाता है आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया, फायर पॉलिसी में हम इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड बेसिस पे भी पॉलिसी ले सकते हैं या फ्लोटर बेसिस पे भी पॉलिसी ले सकते हैं। सेम वे बर्गलरी पॉलिसी में भी इंश्योरेंस कंपनीज दोनों तरह के प्रोविजंस प्रोवाइड करती है। और इसके बाद एक, या मैंने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया कि अगर मेरा वेयर हाउस की बिल्डिंग टूट जाती है, इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट मेरा टूट जाता है, किसके कारण टूट जाता है, जो मैंने फायर इंश्योरेंस करवाया है उनमें से किसी कॉज के कारण अगर मेरी प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाता है, जिसके कारण अब मैं कुछ समय तक अपना सामान स्टोर नहीं कर सकता, तो उसके कारण जो मेरे को प्रॉफिट का लॉस हो रहा है, इनकम का लॉस हो रहा है, वो भी मैं पॉलिसी में कवर करा सकता हूं। उसके लिए मेरे को एक सेपरेट पॉलिसी लेनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड बिजनेस इंटरप्शन लॉस ऑफ इनकम और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इसमें भी जब हमारी प्रॉपर्टी को सेम फायर, फ्लड, इनंडेशन, अर्थक्वेक एटसेट्रा इन सब कॉजेज के कारण लॉस होता है, तो उसको हम कवर कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज इन शॉर्ट अबाउट ऑपरेशनल वेयर हाउसेस, जिनमें हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज लेनी चाहिए। एज फार एज माय पर्सनल एक्सपीरियंस गोज, ये 3 पॉलिसीज तो ऐसी हैं जो स्ट्रेट वे हमें ले लेनी चाहिए। फायर पॉलिसी के बिना हमारा गुजारा नहीं, आप समझ के चलिएगा। बर्गलरी पॉलिसी भी लेनी चाहिए क्योंकि उसमें प्रीमियम बहुत कम होता है कंपेरेटिवली, और आपको कवरेज मिल जाता है। पीस ऑफ माइंड इज देयर कि अगर सामान चोरी एटसेट्रा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उसके हिसाब से वो मेरे लिए जरूरी है। और उसके बाद इफ आई हैव टू गो वन स्टेप फर्दर, कि ठीक है अगर मेरे को कल को लंबे समय तक मेरे वेयर हाउस की किसी कारण से रिपेयर नहीं हो पा रही और मेरे को अच्छा खासा लॉस ऑफ इनकम और लॉस ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, तो मेरे को फिर ये थर्ड पॉलिसी बिजनेस इंटरप्शन पॉलिसी भी लेनी चाहिए। उसके अलावा कुछ एक और पॉलिसीज हैं, उसका हमने अभी इनिशियल स्टेज में डिस्कशन नहीं किया। जैसे पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी है कि अगर मेरे प्रेमाइसेस में वेयर हाउस में कोई आता है, थर्ड पार्टी विजिटर और एनीवन, और उसको अगर किसी कारण से हार्म पहुंचता है, या मेरे वेयर हाउस में सपोज करो कि कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल है और किसी कारण से वो एक्सप्लोड कर गया और नियर बाय जो लोकेलिटी है, नियर बाय जो लोगों हैं, उनको बॉडीली इंजरी हो गई, उनकी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, जिसको हम थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज कहते हैं, उसकी लायबिलिटी का अगर मेरे को कवर करवाना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक अलग से पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल है। सो दिस वाज विद रिगार्ड टू आवर operational policies. Anyone who would like to ask anything at this point of time before I move on to construction phase policies? हाँ, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। Mr. Mittal, you were saying something? May I suggest that once the presentation जब हो जाती है फिर हम take up कर लेंगे। Okay, ठीक है। कुछ और भी हैं तो ठीक है। Sure. ये अच्छा रहेगा। ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंश्योरेंस, जैसा कि नाम बता रहा है कि अगर हमारी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आल्सो देयर आर सेम कॉजेज ऑफ लॉसेस, जिससे कि मेरी अभी बिल्डिंग पूरी तैयार होके ऑपरेशनल नहीं हुई है और तब भी तो डैमेज हो सकता है, तब भी तो मेरे को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो उसके लिए हमारी एक अलग इंश्योरेंस है कंस्ट्रक्शन इंश्योरेंस में। बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन इंश्योरेंस किनको कवर करती है, कोई भी हमारा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट है या हमारी मशीनरी इरेक्ट होनी है, जैसे फ्लाईओवर, ब्रिजेस, वेयर हाउसेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपकी मेट्रो बनती है, आपकी रेलवेज बनती हैं, रेलवे लाइन्स बनती हैं, हर जगह जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं उसकी इंश्योरेंस के लिए हमारा ये कंस्ट्रक्शन इंश्योरेंस है, जिसमें हम बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन को कवर कर सकते हैं,
इक्विपमेंट को कवर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के टाइम मटेरियल इन ट्रांजिट रहता है, हमारे पास सप्लाईज आती हैं, ट्रांजिट के टाइम लॉस हो सकता है, एक कंस्ट्रक्शन साइट से दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट जाते हुए लॉस हो सकता है, मटेरियल्स ड्यूरिंग स्टोरेज और लीगल लायबिलिटी, इन सब को हम कवर कर सकते हैं। बेसिकली हम इंडिया में 2 टाइप की पॉलिसीज के थ्रू इसका इंश्योरेंस करते हैं, एक है CAR कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क और दूसरा है EAR इरेक्शन ऑल रिस्क। दोनों पॉलिसीज में ऑलमोस्ट सेम कवरेज है, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा मेजर क्राइटेरिया है कि अगर हमारे टोटल प्रोजेक्ट की सिविल कॉस्ट 50% से ज्यादा है तो हम कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क इंश्योरेंस देते हैं, और अगर मशीनरी इरेक्शन वर्क की कॉस्ट 50% से ज्यादा है तो इरेक्शन ऑल रिस्क देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो उसमें सिविल वर्क भी होता है, थोड़ी सी मशीनरी इक्विपमेंट भी लगती है, तो डिपेंडिंग ऑन की किसकी प्रोपोर्शन 50% से ज्यादा है उस हिसाब से हम दोनों में से कोई भी पॉलिसी दे देते हैं। दोनों पॉलिसीज में कॉजेज एक्सेट्रा कवर्ड आर सेम। बेसिकली इसको ऑल रिस्क पॉलिसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पेरिल्स कवर करते हैं। पीछे मैंने फायर पॉलिसी का डिस्कस किया था जिसमें मैंने बोला बेसिक पॉलिसी 12 ग्रुप्स ऑफ पेरिल्स कवर करती है, लेकिन इसमें उससे बहुत ज्यादा पेरिल्स आपके कवर हो जाते हैं। चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्क को डैमेज है, इक्विपमेंट को, मशीनरी को, थर्ड पार्टी लायबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई चीज आपकी बिल्डिंग बन रही है, कोलैप्स कर गई, नीचे कोई आ गया, दब गया, लायबिलिटी आ गई आपके ऊपर, तो उसका भी कवरेज इसी पॉलिसी में है, सेपरेट पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें जैसे मैंने बताया बहुत सारे कॉजेज कवर्ड हैं। थोड़े से कॉजेज जिसपे मैं पॉइंट आउट करना पड़ूंगा, फायर के कारण लॉस हो सकता है, लेकिन फायर से ज्यादा आप देखेंगे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में कोलैप्स एक ऐसा कारण है जिसके कारण कॉज ज्यादा होता है। और कोलैप्स के कारण लॉस कॉज क्यों हो सकता है? बैड वर्कमैनशिप के कारण, लैक ऑफ स्किल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, नेग्लिजेंस, ह्यूमन एरर। तो ये सारी चीजें आपकी कवर्ड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है। कल को हमें ये नहीं कोई कह सकता कि बिल्डिंग बनाते हुए कॉन्ट्रैक्टर ने काम ठीक से नहीं किया जी, उसकी लेबर फोर्स की नेग्लिजेंस थी इसलिए हम क्लेम नहीं देंगे। इसमें ये सारी चीजें कवर्ड हैं। उनके कारण कोलैप्स होता है या वैसे बिल्डिंग खराब हो जाती है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। उसके अलावा फ्लड, रॉयट, थेफ्ट, बर्गलरी इसमें इनबिल्ट कवर्ड है, आपको अलग से इंश्योरेंस नहीं लेना। क्योंकि इसमें सारी चीजें इनबिल्ट हैं इसीलिए इसको ऑल रिस्क इंश्योरेंस कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कई बार जब बिल्डिंग का कोलैप्स होता है तो डेब्री को हटाने में ही आपके लैक्स ऑफ रुपीस लग जाते हैं। आपने 10 मंजिल बिल्डिंग बना दी, अभी पूरी नहीं बनी और अनफॉर्चुनेटली वो कोलैप्स कर गई, तो पहले तो आप डेब्री हटाओगे, डेब्री को हटाने में पता चला आपके 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए लग गए। तो क्लियरेंस एंड रिमूवल ऑफ डेब्री को कवर कर सकते हैं, थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर कर सकते हैं, अपनी सराउंडिंग प्रॉपर्टी, मेरे आसपास जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको भी डैमेज हो सकता है, मेंटेनेंस का कवर ले सकते हैं, बिल्डिंग बनने के बाद 1 साल तक मैं मेंटेनेंस दूंगा उसका कवर हो सकता है, और कॉन्ट्रैक्टर की प्लांट और मशीनरी जो साइट पे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रही है उन सब का कवर इस पॉलिसी में मिलता है। तो ये वाली पॉलिसी हमारी बेसिकली कंस्ट्रक्शन फेज के टाइम अगर कोई डैमेज होता है उसको कवर करती है। तो ये शॉर्ट में कंस्ट्रक्शन पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बताया, और दिस वाज अबाउट ऑपरेशनल पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट पॉलिसीज। सो this is a small presentation from my side. I hope I made certain things clear to you. Thank you very much. Thank you, Dr. Suri, for sharing your knowledge. Next, I would like to invite Mr. Thodu Sharing to share his knowledge with us. Am I audible? Hello. Yes, yes, sir. Yes. Yeah, good afternoon, everybody. As per my discussion with Mr. Sethi, sir, I've been told to discuss the claims part. I'll just go through the 4 main points. I think the time slot given to me is a bit limited. First point I would like to touch is what the insurer wants in case of a claim. Second point is what are the issues normally faced in the claim. Third would be what you can do. And fourth is what are the policyholders' rights. To start with, what the insurer wants.
insurers, they just want to pay only to the extent of loss. So there is something called indemnity clause in the policy. So as per the policy condition, the insurer is supposed to bring you back to the situation where you were before the loss happened. Second thing is insurer wants to know the cause of loss. Cause of loss in case of any incident is very crucial, because again, it is, if it falls within the perils covered, then only the claim is payable. Third is loss is to the property insured, because I think most of the time, I think that is also one of the challenges when it comes to the warehouses, is that when it the exact address of the location, because quite a lot of time in policy we find there's a mismatch of the address. That becomes a very big challenge in case of a claim is reported. And another challenging point is with regard to the valuation. I think most of the fire claims, when we go through, people have dispute on the valuation of the claim. What is the actual loss and what is the loss payable? And then next point is whether insurer wants to know whether there is any breach of the policy conditions. So it is always advisable that you go through all the policy conditions and warranties. And the last but not the least is whether all steps have been taken to minimize the loss. So whenever there is a loss, insured is supposed to act as if he is not insured at all. And he is supposed to take all the precautions, all the steps to minimize the loss. With regard to the issues, I think 2 points whenever we talk of fire insurance, we normally discuss with all our clients is, first is, it is always advisable to have a risk inspection by the insurers. This is a free of cost services provided by most of the insurers. And what we suggest to our clients is at least you should do it once every 3 years. So if the risk is, the inspection of the risk is done, then there are no disputes at the time of the claim as to what is insured and what is there in the actual site and what is there in the policy document. So risk inspection is a very, very crucial exercise. And most of the insurers are nowadays insisting on risk inspection. So it is for the benefit of us only that the risk inspection is done at least once in 3 years. Second thing is the valuation. I think most of the time, as I said earlier also, the insurers, the surveyor, what he assesses the loss and what is the actual loss. There are gaps. We recommend to all our clients that they should take the policy on a reinstatement value basis. So there is something called RIV clause in the policy. We have cases where clients have suffered, I think, because the RIV clause is not there in the policy. So the claim payable is almost 60 to 70% of the actual loss. So it is always advisable that the policy is taken on RIV basis and the valuation exercise is done at least once in 5 years. Valuation exercise, it is not a free service. It is something for which you have to pay to the valuers. As a consultant, as a broker, we do arrange for a good valuer at a very competitive price. But yes, valuation, if you have the valuation report, then when it comes in case of any incident, the actual claim amount, it goes, I think the actual loss and the actual claim amount, the difference is not much if you have the valuation report with you. I think, as I said earlier, also the exact address of the warehouse, I think that will play a very crucial part, because we have cases where just because of the, I think we had a case of one big pharma company wherein the godown was just across the lane, but because of the wrong address, the claim got delayed for almost 9 months. It was a big claim, 3 CR, but then yes, if the address was correct, it would have been settled much, much earlier. So to avoid unnecessary delays, it is always advisable that the location address is correct to the point. And if there is any change in the location, that also is to be updated in the policy records. So we have the system called endorsement, wherein all the financial and non-financial changes in the policy are taken care of. Another issue is with regard to the salvage. I think most of the claims, when it is reported, there is always, I think salvage value is something which is becoming a bit, creating quite a lot of issues. Only, I think as per the internal process of the insurers, they have a clear-cut salvage disposal process, especially when it is more than 1 lakh.
So what we suggest is that if the salvage value is less than 1 lakh, fine, you get the salvage quotes from three salvage buyers, and that becomes part of the document, insurance claim document. The last case I was dealing, one of the client was telling me that the salvage value is nil, but I can give them up to 15,000. I said that is secondary. What is the value you are putting in? If the salvage value is nil, get the quotations from three salvage buyers of the nil value, and then at the later stage, if required, we can negotiate with the surveyor on the what is the salvage value to be accommodated in the policy. And finally, on the issues, there should not be any violation of conditions and warranties. Let me make it very clear that with so much of discounts going on in the fire policies, insurance companies are very, very strict with the conditions and the warranties. So if we are expecting the premium rates to go down, then yes, the insurance companies also, they want that the conditions and warranties are strictly adhered to. Now, what you can do with regard to the policies, you should know your insurance policies. A good broker will always do a quality check of your policies. I think making any changes in the policy before the claim, that is much, much easier. Once the claim is reported, then making changes in the policy it's almost impossible for all of us. Second thing is, any change, you have to keep track of the changes. Any new machine coming up, any value of the stocks at the godowns going up or down, that has to be noted to notified to the insurers. Then whatever changes are there, if there, as I said earlier also, if there is change in address, that is a big thing. It has to be notified, and a proper endorsement, because for any change in the policy, there has to be a proper endorsement. If the verbal consent given is not taken at the time of the claim, then in case of a claim, yes, the legal the necessary intimations to the legal authorities is mandatory. I think you have to intimate it to the police, you have to intimate it to the fire brigade. If there is no fire brigade, if there is a small loss, then yes, fire brigade report can be waived, but yes, police report is mandatory. And now I'll come to the protection of the policyholders' right. I think quite a lot of people are not aware that as per the protection of the policyholders, the TATs have been prescribed for all the insurers. So there is a specified TAT for everything. And when you get the policy document, please ensure that you get the proposal form. No policy is issued without a proposal form. So whatever you have filled in the proposal form, it is as per the new IRDA guidelines, it has to be part of the policy document. Second thing is, the surveyor has to be appointed within 72 hours. Survey report has to be given within 30 days. And insured has a right to the copy of survey report. So you just have to make a request to the insurance company, please provide a copy of the survey report, so that you know what is, how the calculation has come up, what is the amount payable, what all has been deducted. In case you need any clarification on the survey report, it has to be given within 15 days of the receipt of the report, and surveyor also is supposed to give within 15 days. And finally, when you have done all the formalities, all documentation, the claim has to be settled within 30 days. That's from my side. I think we can proceed with the question. So can I add 2 points to this one? Yes, sir. Sir, to the term valuation 2-3 times. So what we find as insurance brokerage firm, because I am from RIA Insurance Brokers, and Ruchi Jain is present, she's also from our company, that when you have purchased a ready building, whether say it is a warehouse building, then it is that you are under the impression that you are making this amount as a payment for the whole thing. At that time, it will be worthwhile that you take the documentation which the builder might have done for buying the lift or for buying the transformers or this thing, that thing, because that becomes a very good document when the claim arises and you have to answer many questions. Otherwise,
ask the evaluation engineer, he will charge whatever fees he has to charge, but he can give you A to Z one document which is valuation report of that building, where what is there, what is added, what is there, lift, this, DG set, all that thing, everything is some type of insurance than what Dr. Anupam Suri pointed out, then of course it is there. But in case DG set is an important asset in your warehouse, then you are eligible to buy machinery breakdown policy, which will take care of excessive loss due to breakdown of the DG set and all that thing, which you are aware of is quite expensive. Another point which you as a successful business people must be aware of, but I will like to mention, keep good public relations with your police station and with fire service station. Because when there will be a fire, then both of them will come into picture, and at that time they start acting funny and talk different ways and all that thing, and they say, "ठीक है जी, we will हम submit कर देंगे, दे देंगे." And in case they have put some of the points which are going against you, and copy of that has gone to surveyor or to the insurance company, then you will find it difficult to rectify those things. So keeping a police station and fire service station of your area in good PR, that is a very, very reasonable and sensible suggestion. You might have to take care of that one. And fire equipment, if the fire extinguishers are taken by the surveyor that these were empty and these were not filled and these were 3 years old and the refilling was not done, then these points become a very cumbersome points. So please take care of these things which I mentioned in the beginning and Dr. Suri also mentioned in part of housekeeping. Training of the persons in use of fire extinguishers. Please maintain a logbook that every 3 months, that is a fellow who is supplying fire extinguishers to you or refilling of fire extinguishers, they provide the service, they come 10 persons, 6 persons, they will be trained by them in how to use it, because fire extinguishers are of different type, and when the fire is there, at that time, one worker saying that it is to be used and another one saying no, it is not to be used, that can cause damage, because fire is something where the losses just multiply in time. That is, the delay is there, you can have higher losses. In the construction policy, which Dr. Suri mentioned, that is, you will have labor when they are on some ceiling or some whatever roof is being casted or something, then if there is an accident and the work bill and the Raj or Beldar or whosoever, and that is he falls and he dies, then it is that those type of risks I understand are also covered, and Dr. Anupam Suri can confirm it in that third party liability or something like that. That should be taken care of, because nowadays social media or the electronic media has become so strong that if 2 workers die in your building under construction, they will start telecasting on the TV, and the police will just come and say, okay, let us take the director into custody. So avoid that type of thing by having suitable policy in case that is. So again, I come back to it that keeping good relations with police is very much suggested and is advisable. Now it is that Swapna, you will Sethi Saab, thank you so much. And all of the speakers, abhi thoda sa question answer, our members are having few important questions, and Vaibhav, Director of Satvik Logistics and founder member of association, he has also sent कुछ questions भेजे थे, शायद सपना ने आपसे शेयर भी करे हैं. So Vaibhav, can you please share your questions? हाँ, सीटी साहब, आपने
वो क्वेश्चन रिसीव कर लिया जी। हमने क्वेश्चन रीड कर लिया है, तो आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपने जो कहा है वो औरों को भी हम बता देते हैं कि 5 लाख स्क्वायर फीट में से आपने 1 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करी, और वो जो है आपने 10 डिफरेंट लोगों को 10,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से सेल कर दी। बाकी जो लैंड है वो आपके पास है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो जो 10 लोगों को प्रॉपर्टी बेची गई है उसमें 2 टेनेंट हैं, जिसमें से एक 60,000 स्क्वायर फीट यूज कर रहा है और दूसरा 40,000 स्क्वायर फीट यूज कर रहा है जी। कोई पार्टीशन नहीं है, क्योंकि वो जो है जैसे आजकल ऑफिस बिल्डिंग में भी यही प्रैक्टिस हो रही है कि जो बाउंड्री लाइन बीच में प्रॉपर्टी की नहीं ड्रॉ की हुई, तो इसको कैसे टेक केयर करना है। तो जो मेरा सजेशन है उसको जो है थोंडुप सर जिन्होंने इतना काम करा हुआ है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, और सूरी जी वो आगे कमेंट करेंगे। पहली चीज ये है कि हम जो है कोई भी बिल्डिंग होती है उसका बिल्डिंग के इंश्योरेंस की बात करते रहते हैं, लेकिन अगर आपकी 5 लाख स्क्वायर फीट जगह है तो आपने उसके अराउंड जो है अच्छी बाउंड्री वॉल जरूर बनाई होगी, हाँ या नहीं? बनी है। नहीं है? है। तो बाउंड्री वॉल जो है आपको, क्योंकि आपकी ओनरशिप है बाउंड्री वॉल की, तो आपको जो है बाउंड्री वॉल की फाउंडेशन और वो जो भी होता है उसकी इंश्योरेंस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी है आज भी। अगर जो है फ्लड के अंदर है, पानी नीचे से निकलता है और बाउंड्री वॉल गिर जाती है, तो बाउंड्री वॉल को जो है रिकंस्ट्रक्ट करना वगैरह काफी कॉस्टली चीज होती है। दूसरा जो है अब जो है जो लोग 10 डिफरेंट ओनर्स हो गए हैं उस प्रॉपर्टी के 1 लाख स्क्वायर फीट के, सारे 10 के 10 को जो है एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराना चाहिए, ताकि उसके साथ में इवन प्लान लेआउट जो है वो भी उनको दे दिया जाना चाहिए कि भाई ये 1 लाख स्क्वायर फीट है, इसमें इस 10,000 स्क्वायर फीट का मालिक ए है, इस 10,000 का बी है, इसका सी है, ताकि इंश्योरेंस कंपनी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम किसकी इंश्योरेंस कर रहे हैं, और आकर वो बाद में क्लेम जब हो तो बोलें कि जी अरे इसके अंदर तो आपको तो पता ही नहीं आपकी प्रॉपर्टी कहाँ शुरू हो रही है कहाँ खत्म हो रही है। तो लेआउट जो है वो देना चाहिए। तो ऑल द 10 ओनर्स जो हैं उनको जो है एक इंश्योरेंस कंपनी से एक टाइम पर अलग अलग पॉलिसी जो है वो लेनी चाहिए, क्योंकि ओनरशिप हर एक की अलग अलग है। तो इसके लिए 10 पॉलिसीज इशू करी जाएंगी, ईच फॉर वन एवरी ऑफ दैट इज। जहां तक किराएदार हैं उन्होंने जो है अपने सारे सामान का जो है इंश्योरेंस करवाया हुआ होगा, क्योंकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट उनका है। आपको जो है जैसा कि डॉक्टर सूरी ने बताया कि इसके अंदर कैसे आएंगे, मे बी वो सजेशन कर सकते हैं या थोंडुप सर कर सकते हैं कि जी अगर, क्योंकि आप तो उसको बेच चुके हो, तो इसलिए अगर मान लीजिए कुछ होता है तो आपका तो है ही नहीं, या ओनर सफर करेगा या टेनेंट सफर करेगा। अब आप बताइए कि और क्या क्वेश्चन है इसमें। 2 क्वेश्चन मेरे को अभी क्लियर नहीं हुए थे कि जो वर्चुअल बाउंड मतलब फिजिकल बाउंड्री और वर्चुअल ओनरशिप का जो मिसमैच है वो कैसे हमारे क्लेम को इल इफेक्ट कर सकता है। देखिए ऐसा है कि मैं ये लेके चल रहा हूं कि आपने प्रॉपर्टी बेच दी है और उस गोडाउन को, वेयर हाउस को अब जो है कोई टेनेंट यूज कर रहे हैं कि आप यूज कर रहे हैं, टेनेंट यूज कर रहे हैं, टेनेंट यूज कर रहे हैं, तो आपको जो है टेनेंट जो है जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा उसके अंदर जो है वो तो 60,000 स्क्वायर फीट और 40,000 स्क्वायर फीट बताएगा, और उसके बेसिस के ऊपर वहां पर जो उसने स्टॉक रखा हुआ है, मशीन रखी हुई है, जो रखा है वो। सेठी साहब थोड़ा बीच में इंटरप्ट करूंगा। वैभव भाई का जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई ये तो डेवलपर है, इनके पास 5 लाख फीट का पूरा प्लॉट एरिया है, 1 लाख फीट का उसमें उन्होंने एक बिल्डिंग है जिसके उन्होंने 10 हिस्से करके 10 लोगों को एज होल्डिंग भेज दिया कि शेयर होल्डिंग की तरह। अब जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है वो तो 10 लोगों का है प्रॉपर्टी के अंदर। इनका अपने कोई
प्लांट एंड बिल्डिंग, प्लांट और उसके सामान से अपना कोई मतलब नहीं है, अपना बिल्डिंग के अंदर इंटरेस्ट। वो मैं जो मैंने जवाब दिया मैं रिपीट करता हूँ जी। कि 10 के 10 जो प्रॉपर्टी ओनर हैं 10-10 हजार स्क्वायर फीट के, उनको जो है इंश्योरेंस अपने अपने हिस्से का लेना पड़ेगा, और उनको प्रेफरेबली 10 का कंफ्यूजन नहीं हो। अगर एक ने ले लिया एक कंपनी से, दूसरे ने दूसरी कंपनी से, तीसरे ने तीसरे से, तो जब क्लेम होगा तो उसके अंदर बड़े इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए जो है सारे 10 के 10 जो है वो एक ही इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे। 10 लोग अपना जो है चेक या आरटीजीएस करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, 10 पॉलिसीज इश्यू करी जाएंगी। हर एक जो इनसे जिन्होंने खरीदा है वो अपना अपना जो है वो पॉलिसी अपने पास रखेगा। साथ में डिमार्केशन भी मतलब क्लियर होना चाहिए उस पर। डिमार्केशन तो देखिए आप अंदर जो है जैसे कि वो होती है ना कि येलो पेंट से लेके वो आप ना कर दीजिए तो ठीक है, नहीं तो जो आप प्लान अटैच करेंगे उसके अंदर क्लियर कट जो होगा कि जी ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतने फीट तक जो है और इतने फीट तक जो है ये ओनर ए है, इतने ओनर बी है, वो सारा क्लियर करा जा सकता है। वो ऐसी ड्राइंग जो है वो आप खुद भी बना सकते हैं, आर्किटेक्ट भी आपको दे सकता है, बड़ा सिंपल है वो, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। लेकिन आप जो है अपनी बाउंड्री वॉल को जरूर प्रोटेक्ट कीजिएगा बाय बाइंग इंश्योरेंस। और अगर आप जो है 4 लाख स्क्वायर फीट के अंदर आपके कोई बोरवेल है, कोई ऐसी चीज है, तो उसको भी आप उसमें इंश्योर जरूर कर लीजिएगा। इसमें 10 आदमी में से अगर 2 ने नहीं कराई है जी, तो बाकी 8 के कोई क्लेम में दिक्कत नहीं आएगी ना? देखिए ऐसा है कि अगर ये प्लान दे दिया जाएगा और जी कि 2 जो है बड़े कुछ जिद्दी किस्म के लोग हैं कि वो नहीं कराना चाहते, या वो कहते हैं नहीं जी हम तो जो है अपने नॉन पर्सन से करवाएंगे और जब टाइम मिलेगा तो हम करा लेंगे, हम बहुत बिजी हैं, ठीक है, दैट कैन बी एक्सेप्टेड। लेकिन अगर 10 में से 8 करा लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। फर्स्ट प्रेफरेंस है कि 10 के 10 ही कराएं। ठीक है। अभी और सवाल संदीप जी आपका कुछ सवाल था, आपने चैट विंडो पर डाला था। मेरे को फिर उनका आंसर मुझे मिल गया, कंस्ट्रक्शन बता दिया था। ओके, संदीप जी का क्वेश्चन था वो कंस्ट्रक्शन फेज के लिए अपने को क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर सूरी ने जब मेरे ख्याल से जब इंश्योरेंस के डिस्कस हो रहा था तो उसका जवाब मिल गया था। हाँ जी। सूरी साहब मेरा एक क्वेश्चन है जो इस समय ना पेंडेमिक के समय राइज हुआ कि हमारे को काफी टेनेंट्स की डिमांड आया कि भाई हम रेंट नहीं दे पाएंगे या रेंट मत लो या कम लो। तो जैसे आप लॉस ऑफ बिजनेस प्रॉफिट की बात कर रहे थे, हमारा कोई बिजनेस वैसे तो अफेक्ट नहीं हुआ बट इसकी वजह से रेंटल पे थोड़ा सा वो आया, तो क्या हम लॉस ऑफ रेंटल की कोई पॉलिसी ले सकते हैं किसी भी वजह से, चाहे वो पेंडेमिक हो, चाहे बैंक्रप्सी हो हमारे टेनेंट की, चाहे वो किसी वजह से देता ना हो? नहीं, बेसिकली अभी इतनी वाइड पॉलिसी नहीं है। बाकी वही है कि आपको लॉस ऑफ इनकम की पॉलिसी तभी मिलती है जब आपकी लॉस ऑफ इनकम किसके कारण है, अगर वो कॉजेज ऑपरेट हुए हैं जो आपके फायर पॉलिसी को कवर करते हैं। जो मैंने आपको फायर पॉलिसी में पेरिल्स बताए, अगर पहले उनके कारण प्रॉपर्टी डैमेज होती है, उसके कारण आपको लॉस ऑफ रेंट हो रहा है, वो आपको मिल जाएगा। वो आपको फायर पॉलिसी में भी मिल सकता है। फायर पॉलिसी में भी कुछ एक्सटेंशंस होती हैं कि अगर आप चाहें लॉस ऑफ रेंट लेना है एडिशनल प्रीमियम पे करके तो वो आपको मिल सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक वगैरह भी नहीं आया है। मैं रुचि जैन और थोंडुप जी के जिम्मे लगाता हूँ कि वो जो है इस चीज के ऊपर रिसर्च करके वो आपको जो है जवाब देंगे, क्योंकि मैंने जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं उसमें मैंने देखा है कि जब उसकी इंश्योरेंस करी जाती है लेकिन उसके अंदर वो अगर फायर से डैमेज होती है और कुछ है तो तब जो है लॉस ऑफ रेंटल का क्लॉज जो है वो कुछ कंपनियां देती हैं। तो हम इस पॉइंट के ऊपर आपको जो है और रिसर्च करके आपको जवाब देंगे।
सिटी जी, मतलब ये काफी पर्टिनेंट क्वेश्चन रहा पूरे इस पेंडेमिक दौर में। हाँ जी, काफी डिस्कशन भी रहे, अगर कोई इसका निकाल के लाओ तो अगर कुछ हो सकता है तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और था जी, रिसेंट समय में ना इंश्योरेंस के रेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए, शायद 5 टाइम्स हो गए या कुछ। जो 65 पैसा हुआ करता था या 23 पैसे होता था, वो 3 या 4 टाइम्स हो गया उसका प्रीमियम। ऐसा किस वजह से हुआ है? और हम अपना जी ऐसा इसलिए हुआ है कि जो इंडिया के अंदर री इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, भारत सरकार की, वो रही है अभी पीछे 2-2.5 साल पहले वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई, जिसका नाम जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो उनके जो है लॉसेस जो है वो काफी बढ़ गए थे। तो उन्होंने अपने लॉसेस को जो है कम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज को ये कहा कि तुम जो है बड़े कम रेट के ऊपर माल बेचते हो और फिर उसका हिस्सा हमें देते हो, तो अब जो है हम जो है इस रेट से कम के ऊपर आपसे काम नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने एक ऐसी इंस्ट्रक्शन इश्यू कर दी, तो वो जो है इंश्योरेंस कंपनीज बाउंड हैं। तो उन्होंने जो है जिस जिस प्रॉपर्टी के ऊपर, जिस जिस इंडस्ट्री के ऊपर उन्होंने नया रेट फिक्स कर दिया है, तो सारी इंश्योरेंस कंपनीज को जो है वो फॉलो करना पड़ रहा है। तो इसके अंदर जो है आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हुआ ये था कि फायर और इस प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के अंदर जो रेट 31 दिसंबर 2006 को थे और 1 जनवरी 2007 को डी टैरिफ किया गया था, तो उस पे जो है उस रेट के ऊपर जो है डिस्काउंटिंग जो है 90, 92, 95, 99% तक चली गई थी, जो कि टोटली अनरीजनेबल थी। कंपटीशन में ऐसा हुआ था, तो करेक्टिव स्टेप जो है वो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने लिया। तो ये रेट तो अब डेफिनेटली बढ़ चुके हैं। थैंक यू सो मच। कोई और क्वेश्चन, सवाल? यादव जी, मित्तल साहब। इसी पॉइंट से रिलेटेड है, जो रेट है कि बढ़ चुके हैं, वो 5 गुना इफेक्टिवली बढ़ने। सब ऐसा है ना कि जो 31 दिसंबर 2006 को रेट था, वो 2019 के अंदर, क्योंकि ये कुछ इंडस्ट्री पे पिछले साल बढ़ा था, कुछ में इस साल बढ़ा, तो यानी कि 13 साल के अंदर जो है जहां पर कि 100 रुपए प्रीमियम था वो 10 पैसे रह गया था। तो है ना कि वो भी अनरीजनेबल था। तो मैं प्रोपागेट नहीं करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ये बड़ी अनरीजनेबल सी चीज हुई थी जिसका कि करेक्शन तो आना ही था, और वो इस तरीके से आया। तो आप देखते ही हैं कि आलू की फसल आती है तो हम पेपर में पढ़ते हैं कि आलू सड़कों पे फेंका जा रहा है कि उसकी रिकवरी कॉस्ट नहीं निकल रही, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं निकल रही, तो थोड़े टाइम के बाद फिर क्या प्राइस ऊपर जाती जाती है। तो इसलिए आपसे मैं कहूँगा कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब जो रेट है वो जिस लेवल पर आ गया है वो आज भी है। मेरा सवाल है, जो आज रेट है वो 5 रुपए, तो उसी रेट पे अगर हमारे मंडे को क्या करना है, आसना में देख लो ये कहीं से स्वप्ना, आप चाहो तो म्यूट कर दो जहां से, मतलब जो स्पीकर है आप, क्योंकि आप शायद कर सकते। हेलो, वैभव जी, गो ऑन प्लीज। सीडी साहब, मैं एक्चुअली क्वेश्चन मेरा ये था कि जो आज रेट है वो 5 रुपए कुछ पैसे हो गया है, फायर का जो इंश्योरेंस रेट है, उस रेट में अगर कोई भी एजेंट आके हमको बोलता है कि जी नहीं मैं कम में करा दूंगा, तो अगर 5 रुपए फॉर अ 5 लाख स्क्वायर फुट फैसिलिटी इज कमिंग आउट टू अबाउट 20 लाख 18 लाख रुपए का प्रीमियम आ रहा है। अगर कोई भी एजेंट हमें बोलता है कि मैं कम में करा दूंगा, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन में जा रहा है ना। वो ट्रांसपोर्ट वाले कोड के अंदर में कोई स्कोप ऑफ डिस्काउंट नहीं है कि है। ये है मेरा एक्चुअली क्वेश्चन।
I think he's muted. Sethi ji is muted, I think. Sapna, can you make me the host? I can just. सेठी जी को अनम्यूट कर दो। सारे अनम्यूट ही है सर। उनकी आपको नहीं सुन पा रहे हैं। तब तक वैभव जी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कोई भी एजेंट अगर आपको आज की डेट में कम रेट देता है तो आप उससे ये पूछ लीजिएगा कि मेरे को कवर क्या दे रहे हो, क्योंकि बेसिक कवर जैसे मैंने आपको बताया हमारी फायर पॉलिसी में फायर कवर है, लाइटनिंग कवर है, एक्सप्लोजन कवर है, फ्लड कवर है, रॉइड कवर है। उसमें कुछ ऐसे रिस्क की ऑप्शन होती है कि आप उनको एक्सक्लूड करा लो तो आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कई बार एजेंट्स ऐसे होते हैं वो कस्टमर को नहीं बताते, पता चला आपका रॉइड एंड स्ट्राइक और फ्लड वाला रिस्क एक्सक्लूड कर दिया और आपको कम प्रीमियम कोट कर दिया। आपको पॉलिसी आ गई, कस्टमर कभी एज ए हैबिट पॉलिसी अनफॉर्चुनेटली पढ़ता नहीं, उसको पता नहीं चलता। अनफॉर्चुनेटली अगर कल को क्लेम आ जाए उन कॉजेज के कारण तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी भी आपको चाहे इवन आप ऑटो इंश्योरेंस भी लेते हैं, कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो ये पूछ लीजिए कि मेरे को कवर क्या दे रहे हो या मेरी कोई चीज कम तो नहीं कर रहे। एक पॉलिसी में चीज होती है एक्सेस। एक्सेस होता है फर्स्ट अमाउंट जो कि मेरे को खुद को बियर करना है। कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी जैसे हमारी मोटर पॉलिसी में कहती है कि आपको 1000 रुपए का एक्सेस लगेगा, आपका 10,000 का क्लेम है, आपको 9,000 देंगे, लेकिन अगर आप अपने 1000 की एक्सेस को 1000 से बढ़ा के 3000 कर लोगे हम आपका प्रीमियम कर देंगे। 3000 करने का क्या मतलब है, मेरे को 10,000 वाला क्लेम कितने का मिलेगा, 7,000 मिलेगा। एजेंट्स कई बार ये चीज नहीं बताते, तो अगर आपको कोई भी प्रीमियम कम करता है तो आप उससे राइटिंग में पूछ लीजिए कि आप मेरा कोई कवर तो नहीं कम कर रहे। सो दैट इज वन वर्ड ऑफ कॉशन। सब कवर कम नहीं कर रहे, वो मैंने वो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस मैटर में वो ये है कि उन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन करके प्रीमियम कम करा लिया। जो आप कह रहे हैं वो सही है कि क्लेम के समय में ये बातें खुलेंगी। अभी हमने अगर अप्लाई किया है ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउसिंग के टैरिफ कोड के अंडर में, तो उसका जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी चार्ज कर रही है 5 रुपए, तो उसके अंदर तो कोई स्कोप ऑफ डिस्काउंट की पॉइंट बचा ही नहीं है अनलेस वी रिप्रेजेंट एंड चेंज द टैरिफ कोड इटसेल्फ। इट इज वेरी पॉसिबल टू रिड्यूस द टैरिफ ओनली इन दैट केस। मैं वही बता रहा हूँ ना, 5 रुपए को कम करने का ये तरीका है कि आप अपना फ्लड के रिस्क को हटवा दो। तो एजेंट क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी में फ्लड के रिस्क को हटवा देगा, आपको नहीं पता चलेगा और आपका रेट वो 5 रुपए से कम होके आ जाएगा। I mean, I am saying this is one of the possibilities. Sir, के सारे ये करते हैं, but some do this. They follow this practice also. वैभव जी 1 सेकंड, आई थिंक यस कवरेज को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, बट साथ में जो रिस्क रेटिंग जो है, बिकॉज वेयर हाउस का जो अलग अलग टाइप ऑफ वेयर हाउस पे अलग अलग रेटिंग चल रही है, तो उसमें भी हाँ मैनिपुलेशन चल रहा है कि वो आपको कौन से रिस्क कैटेगरी में आपको डाल रहे हैं। और स्पेशली जब मल्टीपल रिस्क की बात होती है तो एज पर द टैरिफ इट इज क्लियर दैट जो हाईएस्ट रेट है उसको लेना है। तो अगर वो उसमें रिस्क रेटिंग में ही गड़बड़ करके लोअर रिस्क वाला रेट ले रहा है तो आपका प्रीमियम नीचे जाएगा ही जाएगा। तो एक तरफ तो वो रेटिंग राइट करेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, दूसरी तरफ से जो एड ऑन कवर्स है उसके साथ वो प्लस माइनस तो नहीं कर रहा है, उसका पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट आपके प्रीमियम पे आ जाता है। ठीक है, गॉट दैट। वो रेटिंग का ही फिर इशू है, वो रेटिंग हाँ वो रेटिंग में करते हैं, काफी लोग कर रहे हैं, बट वो फिर क्लेम्स में बहुत मेजर इश्यूज अगर आपकी रेटिंग गलत हो गई है तो। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अभी जो लेटेस्ट जो आईआईबी की जो गाइडलाइंस आई है उसमें उन्होंने रिस्क प्रोफाइल इतने ज्यादा क्लियर कर दिए हैं कि आपका जो क्लियर कट वहाँ पे आपका कैटेगरी आ जाती है। तो पहले जैसा नहीं है कि वो क्लब कर रहे थे रिस्क प्रोफाइल्स को, आज की तारीख में रिस्क प्रोफाइल्स एकदम स्पेसिफाई कर चुके हैं वो लोग।
तो अगर उसके बावजूद अगर कोई गलत रेट ले रहा है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द क्लेम्स। इसका क्लासिफिकेशन का कोई डेटा पब्लिश्ड है कि जो वेयर वी कैन? हाँ, इट्स अ पब्लिश्ड डाटा, इफ यू वांट वी कैन शेयर इट विद यू, इट्स आईआईबी और रेट का पब्लिश्ड डाटा है, वो आपको चाहिए हम आपको भेज देंगे। दो क्वेश्चन और थे जी। जो आपने मेंशन किया कि एक सोरी साहब ने मेंशन किया कि बेली एंड बेलर रिलेशनशिप है, तो उसका जो रिस्क का ओवरफ्लो है, हमारा अगर मल्टीपल टेनेंट्स का वेयरहाउस है तो एक रिस्क और इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो टेनेंट का है वो लिमिटेड टू द कार्गो है और हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट लिमिटेड टू द बिल्डिंग है। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि जी जो एक दूसरे का रिस्क है वो आइसोलेट कैसे करना है कि आग लगी एक वेयर हाउस में बट बिल्डिंग कॉमन है, फैसिलिटी एक लार्ज एक फैसिलिटी है, तो उसकी आग दूसरे के वेयर हाउस में फैल गई, तो वो हमारे वो जो तीसरा आदमी है वो हमारे से क्लेम ना करे या जो रिस्क है वो आइसोलेट हो जाए एक दूसरे के लिए, इसको कैसे मैनेज करना है? तो बेसिकली आपको लेआउट से ही पता चलेगा कि एट द टाइम ऑफ लॉस जब आप लेआउट शेयर करेंगे तो उससे पता चलेगा कि कौन सी बिल्डिंग का कौन एक्चुअल में ओनर है। जैसे सिटी साहब बता रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज आपको कहाँ से पता चलेगी, कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं, जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट में होगा और वो आपका लेआउट से पता चलेगा कि कौन कितने पोर्शन का ओनर है, उस हिसाब से उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहेगा। मेरा क्वेश्चन कुछ और है जी, वो जो सीडी साहब से मैंने पूछा तो वो एक अलग क्वेश्चन है, वो तो खत्म हो गई बात। ओनरशिप नाउ इज ओनली वन, दैट इज अनदर सिनेरियो, वो पॉइंट नहीं है। बिल्डिंग की ओनरशिप एक है लेकिन टेनेंट अलग अलग और हम दोनों का इंश्योरेबल इंटरेस्ट लिमिटेड टू कार्गो एंड लिमिटेड टू बिल्डिंग है। अब मैं एक दूसरे को आइसोलेट करना चाहता हूँ और तीसरा जो टेनेंट है उसको भी आइसोलेट करना चाहता हूँ, ये हम क्या लीज डीड में लिखेंगे, उसके टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है या इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट में कुछ लिखवाना होता है? इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो अगर मेरे पास मेरी बिल्डिंग में किसी अगर कस्टमर है, अगर टेनेंट है तो टेनेंट अपने स्टॉक का अपना इंश्योरेंस ले, वो आप नहीं ले सकते क्योंकि उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। अगर आपका सामान है तो आप अपने का लेंगे। एक सिचुएशन ये होती है कि मेरे पास मेरे वेयर हाउस में और कस्टमर का सामान है हेल्ड इन ट्रस्ट, उसका मैं इंश्योरेंस करवा सकता हूँ, क्योंकि अगर किसी थर्ड पर्सन का सामान मेरी कस्टडी में है सो लीगली आई एम लायबल फॉर द गुड्स, तो उसका फिर इंश्योरेंस वो भी खुद करा सकता है, मैं भी करा सकता हूँ। वो डिपेंड करेगा कि हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग क्या है कि कौन इंश्योरेंस अरेंज कराएगा और कौन इंश्योरेंस क्लियर करेगा। तो ये डिफरेंट सिनेरियोस आ जाते हैं। आइसोलेट कैसे करेंगे? दोनों ने अपना अपना करा लिया। आइसोलेट का मतलब आपका है क्या है कि कॉमन स्पेस पे सामान रखा हुआ है। एक वेयर हाउस है जिस 5 लाख स्क्वायर फुट की एक ही बिल्डिंग है, उसमें 10 टेनेंट्स है 50-50 हजार के, उन्होंने अंदर इंटरनली उसमें पार्टीशन हो रखी है, तो हमने एज अ बिल्डर एज अ डेवलपर 5 लाख का इंश्योरेंस कराया, टेनेंट ने अपना 50,000 स्क्वायर फुट के अंदर जो कार्गो पड़ा है उस कार्गो का इंश्योरेंस कराया। अब पार्टीशन नंबर 1 के अंदर आग लगती है, तो जब वो क्लेम करने जाएगा तो वो उसकी इंश्योरेंस कंपनी का लायबिलिटी हमारे ऊपर एज अ बिल्डर ना आए और उसकी लायबिलिटी एज टेनेंट बी के ऊपर ना आए, इसको कैसे प्रोटेक्ट करें? आपके ऊपर तो नहीं आएगी लायबिलिटी, आप तो बिल्डिंग के ओनर है ना। आपके किसी नेग्लिजेंस के कारण तो लॉस नहीं हुआ। दूसरी चीज हो सकती है कि एक टेनेंट के कारण दूसरे टेनेंट की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, उसके लिए उसको पब्लिक लायबिलिटी कवर लेना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा था ना कुछ कवरेजेस मैंने नहीं बताया। पब्लिक लायबिलिटी कवर में क्या हो जाएगा कि मेरे नेग्लिजेंस के कारण अगर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी डैमेज होती है देन आई विल पे द या माय इंश्योरेंस कंपनी विल बियर द, फिर आपको लायबिलिटी इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो इसके मेरा जो नेग्लिजेंस है जी वो है फायर की इक्विपमेंट का, क्योंकि फायर की पूरी इक्विपमेंट मेरे कंट्रोल में है, वो कॉमन एरिया में लगी हुई है।
फिर आप भी लायबिलिटी पॉलिसी ले सकते हैं. Yes, you can also take liability policy. मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर एज अ बिल्डर. समझ गया मैं. अब आपने ये दूसरी चीज ऐड की है कि आप बिल्डिंग ओनर होने के कारण कहीं पे इक्विपमेंट लगा है, उसके कारण दूसरे की प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है. तो उसके लिए बेस्ट है यू गो फॉर पब्लिक लायबिलिटी का, वो आपको मिल जाएगा. We have already shot up by 30 minutes. If any other quick question that we have, शायद यादव जी का एक क्वेश्चन है. मेरा क्वेश्चन डॉक्टर सूरी साहब से है. आपने मेंशन किया था एक फ्लोटिंग इंश्योरेंस का कंसेप्ट आपने बताया था कि अगर आपके कई जगह वेयर हाउसेस हैं, कई बिल्डिंग्स हैं, तो उनका आप एक कंप्रिहेंसिव कवर ले सकते हैं. शायद मैंने इसका आशय ये समझा कि आप 10-10 करोड़ के 5 इंश्योरेंस ना कराकर, तो पहले तरीके आप 10-10 करोड़ के 5 इंश्योरेंस ना कराकर 20 करोड़ का एक इंश्योरेंस और आपके किसी भी गोडाउन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको 20 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा बिकॉज ऑफ दैट फ्लोटिंग कवर इंश्योरेंस पॉलिसी. राइट ऑन दैट? पार्टली यस, पार्टली ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आप 10 वेयर हाउसेस का इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो आपको कम से कम उतनी वैल्यू का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा जितना आपको लगता है कि एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपका सारे 10 के 10 वेयर हाउसेस में उतना सामान है. फ्लोटिंग से क्या एडवांटेज हो जाती है, वहां ज्यादा जरूरत होती है कि कई बार मेरा सामान वेयर हाउस ए से वेयर हाउस बी में जा रहा है, वेयर हाउस बी से वेयर हाउस सी में जा रहा है, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे 10 वेयर हाउसेस में इतनी वैल्यू का सामान है. मैं ये नहीं कर सकता कि मेरे 10 वेयर हाउसेस में सामान तो है 100 करोड़ का और मैं इंश्योरेंस करवा लूं 20 करोड़ का. तो दैट विल अमाउंट टू अंडर इंश्योरेंस. उसमें फिर लॉस के टाइम कम पैसा मिलता है. नहीं, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा था सूरी साहब कि आपके किसी भी वेयर हाउस की कीमत जो भी है, जो भी वैल्यू है वहाँ के आपके एसेट्स की, उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप इंश्योरेंस कराएंगे. मगर आपके 10 वेयर हाउसेस हैं, आप 2 वेयर हाउसेस की वैल्यू के बराबर का एक इंश्योरेंस करा लेते हैं और आपकी 10 की 10 प्रॉपर्टी इंश्योर हो जाती हैं. आपका किसी में भी डैमेज हो, किसी भी एक वेयर हाउस में आपका 20 करोड़ से ज्यादा का डैमेज नहीं होगा, 10 करोड़ से ज्यादा का डैमेज नहीं होगा, क्योंकि एक की वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा है ही नहीं. अगर 10 करोड़ की वैल्यू है, 10 करोड़ का आपने फ्लोटिंग इंश्योरेंस करा लिया तो फिर आपके 10 के 10 वेयर हाउसेस उसी 10 करोड़ की पॉलिसी में कवर हो जाएंगे क्या? नहीं, सॉरी, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपका एक वेयर हाउस 10 करोड़ का है और आपके 10 वेयर हाउसेस हैं तो कंपनी एट ए टाइम कितने रिस्क पे होगी? 10 करोड़ into 10, सिंपल. तो आपको उतने का ही इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा. फ्लोटिंग का सिर्फ यही एडवांटेज है जहां पे एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में सामान मूव करता रहता है और आपको पता नहीं चलता कि मेरे एक वेयर हाउस में कितनी वैल्यू का सामान कब रहेगा. बट हम ये नहीं कर सकते कि कम वैल्यू का करवा दें. When the floating is not covered with the valuation of the warehouses. I mean, you can't have 1/10 of the valuation covered by insurance. You have to go for the total value of the property. Yes, you are right. पूरी टोटल वैल्यू का करवाना पड़ेगा. मेरा दूसरा सवाल ये था कि जो लोग इंश्योरेंस कराते हैं, जनरली जो कंसेप्ट है उसमें ये है कि बिल्डिंग का इंश्योरेंस तो ओनर कराता है और जो उसके अंदर वॉल्यूम रखा हुआ है, मटेरियल रखा हुआ है, उसका इंश्योरेंस जो टेनेंट है वो कराता है. तो हमारी लायबिलिटी, इंश्योरेंस कंपनी की जो लायबिलिटी होगी वो हमारी बिल्डिंग के डैमेज तक सीमित रहेगी. उसके मटेरियल की जिम्मेदारी ना तो हमारी है और ना वो इंश्योरेंस कंपनी की है. वो दूसरे कवर के अंदर मानी जाएगी जो कि टेनेंट अपने एंड पर इंश्योरेंस कंपनी के साथ कराएगा. जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. थैंक यू. Sir, we have already shot by 35 minutes. Very interesting webinar. I will just have 1 or 2 quick minutes. अगर कोई किसी और का कोई सवाल है, then otherwise we wrap up this session. None.
Oh, sir, Sethi ji, you're not audible. I don't know why, but आपकी आवाज नहीं आ रही है. सेठी जी बोल तो रहे हैं. नहीं सेठी जी आवाज नहीं आ रही है. या तो एक बार म्यूट अनम्यूट करके दोबारा देख लीजिए. कई बार ये टेक्नोलॉजी हैक चल जाते हैं काम. Technology gives us so many good things, but one hitch can do anything. Yeah, exactly. I'm so sorry, Sethi साहब, we cannot hear you. एक बार आप फोन पे ट्राई कर लीजिएगा. जी. But excellent session, I would say, and I would wrap up. Thank you, our distinguished speakers. मतलब इतनी knowledge मुझे बहुत दिनों बाद एक ऐसा सेमिनार देखा जहाँ सब जितने लोग थे वो सब नोट्स लेते दिख रहे थे. तो जहां पर भी नोट्स लेते दिखे तो उसका मतलब ये है कि डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग है. आई कैन से दैट विद ऑल माय एक्सपीरियंस. Nowadays there are so many webinars that people are flooded. Practically they switch it on and then they forget कि भाई क्या हो रहा है. I'm so happy कि we could be part of this, and all the knowledge shared by Dr. Suri, Mr. Thondup and Mr. Sethi was of immense use, and definitely they are benefited by your pearls of wisdom. I would expect अपने एक तो टैरिफ कार्ड की बात हुई थी डॉक्टर सूरी, अगर आप शेयर कर सके प्लीज. सपना कैन कोऑर्डिनेट विद यू. और सेठी साहब ने एक इशू एक लॉस ऑफ प्रॉफिट या रेंटल का बोला था रुचि जैन जी के लिए और थोंडुप जी के लिए कि if they can kindly look at it, if there is such a possibility, or maybe we can have similar kind of a product which we can take it up for our warehouse owners. It is becoming a reality now more and more that we could have this kind of a facility with us. With these words, I would end this seminar. Thank you, our speakers, our members, our board members, and everyone who have helped us to make this event. Thank you, Sapna. She has worked a lot to make it happen. Thank you, everyone. And now we can leave this meeting and have a good day. Bye. Thank you so much.